Good afternoon, students. Today we will see concurrent executions and we will try to cover serializability. Now, I told you, these are very, very important portions of this DBMS, and usually every year, at least one or two questions are asked from this particular part. So very important to know these concepts here. So let us start with what we were doing yesterday itself. We were talking about yesterday. We were talking about the transaction state, and in transaction state, we said there are around 5 different states, starting from active, from there to partially committed, otherwise committed, or it has failed, and then from there it is aborted. So that is what we have seen. So we have seen this particular transaction state. Okay, I will upload this. Oh, I will upload this slide, but I would like you to write down whatever is there in the slide, because slide से पढ़ना थोड़ा difficult होता है. I prefer you to write them down, जैसा कि हम आपको बताते जाएंगे कि you keep on writing. But this slide also I will upload there in the website, in the LMS part. Okay. I hope nobody disturbs me again. So I go back to, yeah. So we talked about this. A transaction is active, then it is partially committed, then it is committed. नहीं तो अगर किसी कारण से ये fail करता है तो it comes to the fail state, and from there it is aborted. And in दोनों केस ये क्या करते हैं, हम इसको बाहर निकाल देते हैं from the process cycle. इससे we terminate these transaction states. Now let us give the heading concurrent executions. Concurrent executions. Now concurrent execution करने का मतलब क्या है कि आज का जमाना जो है, that is multi-programming or multi-processing we call it, हम लोग प्रेफर करते हैं to maximize the throughput, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोग्राम्स को हम पैरेलली रन कर सके to increase the efficiency of the software or increase the efficiency or use the hardware in a very efficient manner. Okay. So similarly, transaction processing system जो है, ये transaction system processing that also allows multiple transactions concurrently. ये हम लोग देखे थे कि conventional file processing system में था कि concurrent access होने नहीं देता है, लेकिन DBMS में multiple transactions are allowed to run concurrently. So now whenever there are multiple transactions running, तो हो सकता है कि supposedly this is a data item A, there is another data item B. यहाँ एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है. अब कौन इसको कब एक्सेस कर रहा है, कौन इसमें लिख रहा है, कौन इससे पढ़ रहा है? So that is troublesome. That is really troublesome because पढ़ रहा है, that is immaterial. जब ये दोनों पढ़ रहा है एक का वैल्यू, that is immaterial. लेकिन जब लिखा जा रहा है तो जो वाला वैल्यू जो लास्ट में लिख रहा है, जो ट्रांजैक्शन, these are all transactions, these are transactions, जो ट्रांजैक्शन लास्ट में लिखेगा एक का वैल्यू, जो हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे, रीड ए और राइट ए, इस तरह का मामला जो था, तो जो लास्ट में लिख रहा है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिजर्व्ड होगा. यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, से हम एक ट्रांजैक्शन टी है, ये पढ़ रहा है रीड ए, फाइन. उसके बाद बोला a इक्वल टू a माइनस 50, फिर बोला राइट ए. एक और ट्रांजैक्शन यहां चल रहा था T2, ये कुछ और कर रहा है, रीड ए, ये बोल रहा है a इक्वल टू a प्लस 50, ठीक है. फिर और कुछ करने गया है, b इक्वल टू b माइनस 50, राइट ए. तो
तो ये राइट ए इसके बाद लिखा, तो ये राइट ए जब लिख रहा था वहां पे इसका वैल्यू कितना हो चुका, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर ए का वैल्यू इनिशियल अगर 100 था तो यहाँ हो जाएगा 50 रुपीज। लेकिन जब ये रीडे पढ़ा था, ये भी रीडे पढ़ा था, ये भी उस समय उसको पता था कि यहाँ 100 रुपया है, ए इज ए प्लस 50, तो इसको है कि नहीं ठीक है 150 रुपया यहाँ पे हो गया 150 रुपीज। राइट ए ये बाद में लिख रहा है, तो यहां हो जाएगा सम हो जाएगा 150 रुपीज, लेकिन होना चाहिए था अगर हम देखें तो सम डिफरेंट वैल्यू। सो दिस गिव्स राइज टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। हम कंकरेंटली रन तो जरूर करवा रहे हैं, बट दैट गिव्स राइज टू इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी को हम निमंत्रण दे रहे हैं व्हेन आई रन कंकरेंट एग्जीक्यूशन। लेकिन हमको चलाना ही है कंकरेंट एग्जीक्यूशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ नंबर वन, दिस इंक्रीज्ड प्रोसेसर एंड डिस्क यूटिलाइजेशन लीडिंग टू बेटर ट्रांजैक्शन थ्रूपुट। दैट मींस क्या है कि दो ट्रांजैक्शन चल रहा है, T1 और T2, ठीक है। तो हो सकता है कि T1 जो है किसी समय CPU यूज कर रहा है, यू नो ऑल दिस फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये T1 जो है कभी ये आईओ डिस्क, आईओ इनपुट आउटपुट चला गया, किसी समय हार्ड डिस्क यूज कर रहा है, रीड राइट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। सो बाय दैट टाइम द प्रोसेसर इज वेकेंट, प्रोसेसर खाली जा रहा है। तो उस समय अगर हम T2 को डाल दें तो वो क्या कर लेगा, उस समय प्रोसेसर को यूटिलाइज कर लेगा, तो मेरा थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाएगा। थ्रूपुट इज नथिंग बट एफिशिएंसी, जितना हम कितना जॉब हम दे रहे हैं और कितना जॉब को कंप्लीट करके बाहर निकाल रहा है। सो T1 ट्रांजैक्शन हर समय प्रोसेसर यूज नहीं कर रहा है, वो किसी समय हो सकता है इनपुट आउटपुट काम करने के, रीड राइट कर रहा है, उस समय द प्रोसेसर इज वेकेंट। उस समय अगर हम T2 को अंदर डाल के उसका काम करवा लें तो डेफिनेटली मेरा थ्रूपुट बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सो रिड्यूस्ड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर ट्रांजैक्शन। नाउ इसका क्या मतलब है? दिस ऑल्सो यू हैव सीन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यू नो जब हम लोग प्रीएम्प्ट करते थे, preemptive and non-preemptive job scheduling probably you have seen, कि भाई एक छोटा सा ट्रांजैक्शन, यहाँ T1 है, एक बड़ा सा ट्रांजैक्शन है, और एक T2 है, बेचारा 2 लाइन का ट्रांजैक्शन है। लेकिन चूंकि ये पहले आया तो इसके कारण T2 जो है रुक जाएगा, तब तक रुक जाएगा जब तक ये खत्म नहीं हो। तो these calculations you have already seen in your operating system classes. So reduced average response time, concurrent execution होने से this is the benefit that we get. So हमारे लिए concurrent execution होना जरूरी है, parallelly हम process करवाएंगे। So then लेकिन है क्या, the database system must control the interaction among the concurrent transactions. इसको तो करना होगा डेटाबेस। अब हम concurrent अलाउ कर दिए, लेकिन इसके कारण जो झमेला होगा, it may give rise to inconsistency, इसको देखेगा कौन? The database management system, ठीक है। डेटाबेस कंसिस्टेंसी को, यानी उसके शुरू में you know the sum has to be preserved. ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले ए और बी का सम अगर 200 रुपया था, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी 200 रुपया होना चाहिए। इट कैनॉट बी, मनी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे। सो हमको अब कहानी ये हो गया, देन यू विल से कि नहीं, सबसे आसान तरीका तो यही है कि जब सीरियली चले, ए खत्म होगा उसके बाद बी चलेगा। डेफिनेटली यस, दिस इज द सेफेस्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कि सीरियल एग्जीक्यूशन होगा ट्रांजैक्शंस का। सीरियल एग्जीक्यूशन जहां होगा, सो हमारा ये कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम जो है खत्म ही है। लेकिन हमको ये चाहिए इंक्रीज प्रोसेसर डिस्क यूटिलाइजेशन, हमको एवरेज रिस्पांस टाइम चाहिए। तो ये सब अगर चाहिए तो हमको कंकरेंट प्रोसेस चलाना होगा। लेकिन कंकरेंट प्रोसेस जहां चलाएं, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होगा। कंसिस्टेंसी में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एसिड प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। एसिड प्रॉपर्टी वायलेट होगा तो उसको चेक करने के लिए वी नीड टू इंप्लीमेंट सर्टेन कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम्स, दैट मींस मैकेनिज्म्स टू अचीव आइसोलेशन। यानी प्रोग्राम को लगेगा कि हम ही चल रहे हैं, ठीक है, इट इज इन आइसोलेशन, अलग थलग हम अपना चले हुए हैं, बट आई एम प्रिजर्विंग द कंसिस्टेंसी। सो कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम्स का मतलब क्या है? That is to control the interaction among the concurrent transactions
in order to prevent them from destroying the consistency of the database. Forget about this part. माने इसको हम लोग एक्चुअली बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं कि कंकरेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंकरेंसी कंट्रोल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, ये हमारा एक बड़ा सा ये टोटल लुकआउट ही है कंकरेंसी कंट्रोल का। तो कहने का मतलब फिर से एक बार दोहरा देना कि सीरियल प्रोसेसिंग अगर होता है तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन कंकरेंट प्रोसेसिंग करवाने से हमको बहुत सारा फायदा है। तो हमको कंकरेंट प्रोसेसिंग में जाना है। अगर हम जा रहे हैं तो हमको कुछ स्कीम तरीका सोचना होगा या लगाना होगा, सो दैट दे कैन अचीव आइसोलेशन और दे कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। सो दैट इज व्हाट इज द थियरी राइट एट दिस मोमेंट। नाउ लेट अस सी what are schedules. Okay, so schedule क्या है? These are sequences of instructions that specify the chronological order in which instructions of concurrent transactions are executed. Sequence of instructions that specify the chronological order in which instructions of concurrent transactions are executed. उसको हम बताएंगे, I'll come to it. Okay, so a schedule for a set of transaction must consist of all instructions of two transactions. यानी you see this is T1 अगर हम बोलते हैं तो this is one transaction. Okay, T2 अगर हम बोले तो this is one transaction. लेकिन हम अगर इस तरह इसको दिखाएं कि T1 अभी चल रहा है और उसके बाद T2 चल रहा है, so then this complete thing is called a schedule. This is a schedule. हो सकता है कि 3 ट्रांजैक्शन चले, T1, T2, T3 चल रहा हो, तो ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है। इसका सीक्वेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऐसा अगर हो रहा है तो दिस इज अ सीरियल सीक्वेंस, ये कंकरेंट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सो बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। So then a schedule for a set of transaction must consist of all instruction of those transaction. जितना भी इंस्ट्रक्शन है सब उसमें आ जाना है। इस पूरे शेड्यूल के अंदर में ट्रांजैक्शन का जितना भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो आ जाना है। Must preserve the order in which the instructions appear in each individual transaction. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Must preserve the order in which the instructions appear in each individual transaction. I said कि ये read और write में बड़ा प्रॉब्लम है। read A और यहाँ पे है write A, ये दो ही हम लोग ट्रांजैक्शन में फिलहाल ये दो ही स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा तो A इक्वल टू A प्लस 50, B इक्वल टू B माइनस, वो अलग चीज है। बट हमारे लिए मेन चीज ये है, हम डेटाबेस से पढ़ रहे हैं, डेटाबेस में लिख रहे हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं वो लोकल बफर में कर रहे हैं। तो यहां ये बोल रहा है इट मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर, यानी इस ट्रांजैक्शन में अगर यहां पे राइट ए है, कहने का मतलब T1 जो है ए पहले लिख रहा है, इसके बाद यहां पे एक राइट ए है, दैट मींस T2 बाद में लिख रहा है और सबसे लास्ट में T3 लिख रहा है। तो कैसा भी क्यों ना हो, एक शेड्यूल को कंकरेंट करें ना करें, दिस ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व कि कौन सा रीड पहले हो रहा था। रीड में दिक्कत नहीं होगा, वी विल एक्सप्लेन कि राइट में दिक्कत होगा। तो इट मस्ट, कौन महान इंसान है, वॉच दिस मिस्टर सिद्धार्थ कुमार। मिस्टर सिद्धार्थ कुमार, लास्ट चांस फॉर यू टुडे। Very highly disappointed I am that you disturb the class. So, must preserve the order in which the transactions appear in each individual transaction. हम लोग इस पे बात करेंगे, but you should remember this point. Must preserve the order कहने का क्या मतलब था? A transaction that successfully completes its execution will have a commit instructions as the last statement. हम लोग अभी फिलहाल कमिट के बारे बात नहीं करेंगे, बट आई टोल्ड यू कमिट करने का मतलब होता है टू मेक द चेंजेस परमानेंट। हम लोग यहां मान लेंगे कि जहां हम राइट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बफर से डेटाबेस में लिखा गया है, दैट मींस इट इज ऑलरेडी कमिटेड। हम लोग ये मान के चलेंगे।
By default, transaction assumed to execute commit instruction as its last step. तो अगर हम write a लिख दिए तो वो commit कर जाएगा, ये हम मान रहे हैं. A transaction that fails to successfully complete its execution will have an abort instruction as the last statement. ठीक है? So these are all there. We have already discussed this. तो शेड्यूल का मतलब हम समझ गए, ट्रांजैक्शन का जो हम ग्रुप बना रहे हैं एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब प्रोसेसर में चल रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ शेड्यूल. ठीक है? शेड्यूल कैन बी वन सिंगल ट्रांजैक्शन, शेड्यूल कैन बी अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन. मेनली एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन को ही हम शेड्यूल बोलते हैं. तो शेड्यूल के अंदर ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस मस्ट बी प्रेजेंट. ये नहीं कि भाई इसका दो जो है इस T1 का बाद में कोई और ट्रांजैक्शन आएगा वो कंप्लीट करेगा. नो, नॉट लाइक दैट. ऑल द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी प्रेजेंट विद इन द शेड्यूल एंड मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर. दिस इज व्हाट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी हियर. लेट अस सी अ शेड्यूल, ठीक है, where transaction T1 transfers $50 लिखा हुआ है, ये सिल्वर्ट्स एंड गैल्विन इसका बुक है, सिल्वर्ट्स एंड कॉथ का. So it transfers $50 from account A to B and T2 transfer 10% of the balance from A to B. ये काम है इसका. ठीक है? So कैसे हम लिखें? Watch this schedule. This is schedule 1. And of course this is a serial schedule. काहे का सीरियल शेड्यूल है? इसके बाद जो है ये शेड्यूल चल रहा है. माने आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन T1, T2 starts. So the execution of T1 and T2 is serially. That is why we call it a serial schedule. This is the example of a serial schedule in which T1 is followed by T2. Now let us see read A equal to A minus 50, right? इसमें समझने का कुछ नहीं है. This is not rocket science. Read A equal to A minus 50, write A. Read B equal to B plus 50, write B, commit. ठीक है? 100 रुपया था इसके पास और 1000 rupees. 1000 rupees. I'm sorry, T1, T2 के पास नहीं. A equal to 1000 and B equal to 1000. ये है से. तो A equal to A minus 50. तो this is A. अभी बफर में क्या हो गया? A is 950. राइट A जहां कर दिए तो A का वैल्यू लिखा गया है 950. ओके. रीड B. B इक्वल टू B प्लस 50. तो B का वैल्यू हो गया 1050. राइट B. तो ये B का वैल्यू अब लिखा गया. These values are no more there. These values are no more there. ओके. I said कि हम राइट B को ही कमिट मान लेंगे. Forget about this statement. Now, अब T2 आया. रीड A. तो ये A का कितना वैल्यू पढ़ेगा? 950. A is A into 1%. तो इसका 1% they will add to it. That is say 9.5. So 9.5 इसमें इसको कैलकुलेट कर रहा है. Temp is A multiplied by 0.1%. I'm not at all interested in the calculation. I just wanted to tell you this. तो एक टेम्पोररी वेरिएबल में ये कैलकुलेट किया है इसका 1%. एंड देन A में से A का that टेम्पोररी जो भी कैलकुलेशन हुआ उसको ये माइनस कर दिया. एंड देन फाइनली इट राइट्स अ वैल्यू. जो भी वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ A. सो से इसके बाद ये सब कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ रहा है X. A का वैल्यू. तो X जो है A में स्टोर हो गया. रीड B. B का कौन सा वैल्यू पड़ रहा है? 1050. तो 1050 में ये टेम्प जो भी कैलकुलेशन हुआ था दैट इज एडेड और से दिस वैल्यू इज Y. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज B इज रिटन एंड B का वैल्यू हो गया Y एंड A का वैल्यू हो गया X एट द एंड ऑफ. फाइन. सो नाउ दिस, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, ये पढ़ गया. लेकिन यहां पे एक चीज था, जब ये रीड A कर रहा है तो ये कौन सा वैल्यू पढ़ रहा है? दैट वैल्यू ऑफ A which is written by transaction T1. T1 जो वैल्यू लिखा था उस वैल्यू को ये पढ़ रहा है. राइट B. सो रीड B यहां कौन सा वैल्यू पढ़ रहा है? दैट इज 1050.
which is already written by transaction T1. ये वैल्यू को ये पढ़ रहा है. So this schedule can be represented this way also. Whatever may be the value, लेकिन consistency मेरा preserve होगा. ये T2 is followed by a schedule in which T2 is followed by T1. तो T2 को पहले कर दिए तो यहां अब ये कितना पड़ता 1000. इसका 1% निकालता, इसमें माइनस करता. लेट x का वैल्यू इज समथिंग x, राइट ए x, a इक्वल टू x हो गया. b का वैल्यू कितना पड़ता 1000, उसमें ये 1% ऐड कर देता, राइट b जो भी होता दैट इज y, ऐड कर दिया, कमिट, फाइन, फॉरगेट अबाउट इट. अब जो यहां रीड ए हो रहा है वो ए का कौन सा वैल्यू पड़ रहा है दैट इज x. अब उसमें से 50 रुपए माइनस कर रहा है. अब इसको a लिख दिया. से नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ a इज p. रीड b कौन सा वैल्यू पड़ा था y. अब b इक्वल टू b प्लस 50 कर दिया, राइट b, सो लेट दैट इज q. सो b का वैल्यू अभी हो गया q, कमिट. सो दिस हैज गॉट नो कंफ्लिक्ट. सॉरी, दीज आर सीरियल शेड्यूल्स विदाउट एनी कंफ्लिक्ट. कोई कंफ्लिक्ट नहीं है. या इसके बाद ये चल रहा है या उसके बाद वो चल रहा है, ठीक है. ए में इसका उस समय वैल्यू घट गया था, इसमें ए का वैल्यू बढ़ गया था, इमटेरियल. लेकिन a प्लस b का वैल्यू यू विल फाइंड दैट विल रिमेन कंसिस्टेंट. इफ यू मेक दिस कैलकुलेशंस यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ a प्लस b रिमेन्स कंसिस्टेंट व्हाटएवर. चाहे t1 के बाद t2 आए, t2 के बाद t1 आए, इमटेरियल a प्लस b रिमेन्स कंसिस्टेंट. अब a का क्या वैल्यू हुआ, b का क्या वैल्यू हुआ, दैट इज सेपरेट. कि भाई t1 को आगे ले जाएं तो a का वैल्यू ये होता, t2 को आगे ले जाएं तो a का वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये होता. दैट इज इन मटेरियल. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस. सो t1 and t2, either t1 runs earlier, gives me this value, or t2 runs first, giving me this value. Okay. So then this is what, these are the examples of serial schedule. Now watch this. वही ट्रांजैक्शन है, वही ट्रांजैक्शन है. Okay. ये whenever you get this question, you know what are schedules and what do you mean by concurrent schedule, etc., etc., you have to show them this way. ये पूरा लिखना होगा तुमको ऐसे ही. Read A, this, write B. T2 is this, up to this, यहां तक लिखोगे. I said commit, you forget about this comment. यहां तक लिखोगे कि भाई this is a example of serial schedule. अब तुमको ये जरूरत नहीं है कि ये भी बार बार दिखाओ. अगर क्वेश्चन उस तरह है तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि T1 followed by T1 is T2 is followed by T1. Then you show this again. You have to write these, write this down in the paper, examination answer sheet. Then I come to this transaction. इसके लिए हमको चाहिए कि you remember the one. हम फिर से यहां बगल में लिख रहे हैं so that you can remember. T1 मेरा पहले क्या था, read A colon equal to A minus 50, write A, read B, read A, sorry, or read B. B colon equal to B plus 50, write B. ओके. और इसके बाद T2 था, वहां क्या था, रीड ए. ओके. टेम्प जो भी था, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ था. दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सीरियल शेड्यूल. अब इसको जो इस तरह से बना है, दिस इज नॉट अ सीरियल शेड्यूल, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कंकरेंट शेड्यूल. ठीक है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू दैट दिस शेड्यूल. कैसे कैसे? यू सी, ए का वैल्यू पढ़ा है यहां 1000, 950 हो गया. राइट द वैल्यू ऑफ ए, तो 950 लिख डाला. ओके. तो इस लाइन के बाद इस ट्रांजैक्शन में ए का तो और कोई काम नहीं था. इस ट्रांजैक्शन में ए का तो कोई काम नहीं था.
सो यानी राइट ए 950 ये लिख चुका, तो ये वाला जब 950 पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये राइट बी खत्म होने के बाद पढ़े इसको। तो यहां हम अगर ए को पढ़वा दें दिस वन, तो दिस विल ऑल्सो, देन हियर दिस विल ऑल्सो रीड द वैल्यू ऑफ ए एज 950। फिर टेम्प का कैलकुलेशन करेगा, ए माइनस टेम्प करेगा, राइट ए करेगा, जो भी द वैल्यू विल बी एक्स, ए का जो भी वैल्यू आया, तो दैट ए विल बी रिटन हियर फाइनल वैल्यू। अब रीड बी कर रहा है यहां, ठीक है, राइट बी कर दिया। एक चीज इसमें ध्यान देने का क्या था, ये T1 में राइट ए जो है डेफिनेटली T2 से पहले हो रहा था। T1 का राइट ए यहां लिखा हुआ था, पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन में राइट ए लिखा हुआ है, लेकिन T2 में तो यहां कहीं पे लिखा हुआ था राइट ए। तो यानी T1 में जो राइट ए था, ये वाले शेड्यूल में, इस शेड्यूल में अभी भी राइट ए T2 के राइट ए से पहले आ रहा है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये रीड भी कर रहा था, इसके बाद राइट भी कर रहा है, इसका राइट भी T2 के राइट बी से पहले आ रहा है, यानी जो वैल्यू T1 लिख रहा है T2 उसी को पढ़ रहा है। ऑलराइट, सो इन दिस शेड्यूल 3 the sum a plus b is also preserved, but I say this is not a serial schedule, because ये शेड्यूल तो इस तरह से था, T1 का कंप्लीट शेड्यूल तो ऐसा था इतना बड़ा, और T2 का भी इतना बड़ा था, इसको तोड़ के इस तरह से कर दिए। सो दिस इज एग्जैक्टली नॉट serial schedule, but it is equivalent to, why equivalent? Because that will also give the same result as was given by schedule 1। ये भी वही रिजल्ट देगा जो कि शेड्यूल 1 हमको दिया था। फाइन, नाउ शेड्यूल 4, दिस इज अनदर कंकरेंट शेड्यूल। तो हम इसको इस तरह से बांटे थे, यहां पे ऐसे डिवाइड किए थे, तो अगर ऐसे किए थे तो मेरी मर्जी, हम इसको कुछ और कर दें, ऐसे बनाए। तो ऐसे अगर बनाए हैं तो यू सी व्हाट हैपेंस, 1000, a is a minus 50, 950। ओके, अब ये भी रीड ए कर रहा है, कौन सा वैल्यू पढ़ेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए दैट इट विल रीड? एनीवन? 1000। करेक्ट, इट विल स्टडी 1000। इसलिए 1000 ये पढ़ रहा है बिकॉज ये राइट अभी तक किया ही नहीं है, ये इसका लोकल बफर में है। तो ये जो रीड ए किया तो दैट इज 1000। तो अब जो ये कैलकुलेशन कर रहा है, ये ए का वैल्यू को 1000 मानते हुए, तो यहां पे इट विल राइट डाउन सर्टेन वैल्यू ऑफ ए, यहां पे इट विल राइट डाउन सर्टेन वैल्यू ऑफ ए, सब whatever be the value। okay, so it is 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, what will be the value? 1010 और 1100, ठीक है, जो भी, whatever be the value। so now it is 1100, और यहां पे अगर हम लिख रहे हैं a is a minus temp, so or this is 100, a into this is 100, a minus temp, so this value is 900। so write a का वैल्यू कितना लिख दिया? 900। रीड b कितना पड़ा? 1000। परफेक्ट। यहां आप बोल रहे राइट ए, तो ये इससे इसको मतलब नहीं है, ये राइट ए इसको लिख देगा 950, लिख दिया 950। ओके, सो नाउ अभी जो है ए का वैल्यू हो गया 950 रुपीज। ओके, अब रीड बी, ये भी रीड बी किया 1000, ये भी रीड किया, ये भी 1000 पड़ा, तो 1000 प्लस 50 दैट इज 1050। राइट बी लिख दिया 1050, ठीक है। अब बी इज बी प्लस टेम्प, तो ये बोल रहा है 1050 प्लस 100। राइट बी, तो दैट इज 1150, तो 1150 प्लस 950, यू कैन सी व्हाट इज देयर, ठीक है। बट होना कितना चाहिए था? 1000 प्लस 1000, दैट इज व्हाट इज 2000 ए प्लस बी। अब यहां पे 100 रुपया कहां से आ गया? सो दिस इज नॉट प्रिजर्विंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। तो यहां तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। ये तो हम पेपर में लिख रहे थे, देख रहे थे, ऐसे कर रहे हैं कि भाई दो ट्रांजैक्शन मेरे पास आया इन वन पर्टिकुलर शेड्यूल 1,
उसमें इन लोग ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो पहले T2 फिर T1 जो भी वैल्यू आ रहा था। अब हम बोले ना नहीं, इसको पैरेलल शेड्यूल बनाना है, कंकरेंट शेड्यूल। तो हम क्या किए, कुछ को तोड़ दिए, कुछ को ऐसे कर दिए, कुछ को इधर रख दिए, कुछ को इधर रख दिए। सो बाय दैट टाइम ए इज राइटिंग राइट ए, तब तक तो ये रीड वगैरह कर सकता था, ठीक है, करके प्रोसेस में कर देगा, A-50 या टेम्प वाला कैलकुलेशन प्रोसेसर कर देगा। तो इसीलिए हम ऐसा करवाए थे, सो दैट कंकरेंट हो गया। दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंकरेंसी। तो ये हम इसको देख पा रहे थे कि भाई यहाँ राइट ए पहले किया था, ये अभी भी पहले होना है, ये बाद में किया था, ये बाद में होना है। नहीं तो अगर इस तरह से हम इसको तोड़ दिए होते तो आई कैन सी द कंसिस्टेंसी इज नॉट मेंटेन्ड। तो कुछ भी कर देने से कंकरेंट शेड्यूल नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। लेकिन कंकरेंसी हमको चाहिए, हमको कंकरेंसी चाहिए, लेकिन कैसे भी कंकरेंसी नहीं हो सकता है। सो हाउ टू गो अबाउट इट, दैट इज द क्वेश्चन। So then comes the biggest important thing, that is what is called serializability. Serializability कहने का मतलब क्या है? अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। Each transaction preserves database consistency. Biggest thing, चाहे T1 हो चाहे T2 हो, जो भी हो, कंसिस्टेंसी बर्बाद नहीं करेगा। Thus, serial execution of a set of transaction preserves database consistency. इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। T1 के बाद T2 हो रहा है या T2 के बाद T1 हो रहा है, तो वो तो होना ही है consistent. A schedule is serializable. ये word very important है। If it is equivalent to a serial schedule. A schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule. इस पूरे लाइन के ऊपर ही करीब करीब एक चैप्टर है। Different forms of schedule equivalence give rise to the notions of conflict serializability and view serializability. So let us now start explaining the word serializability. कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन T1 है, एक ट्रांजैक्शन T2 है। अब पूरा शेड्यूल है S, शेड्यूल इज S। ये ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहा है, ये ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहा है। तो बोला जा रहा है अगर इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, ये जो इस शेड्यूल का रिजल्ट एट द एंड ऑफ द शेड्यूल, अगर हम माने कि अगर T1 ऐसे चलता और T2 ऐसे चलता, okay, then this schedule is called serializable. This schedule, ये serial नहीं है, this is a concurrent schedule, parallelly चल रहा है। So this concurrent schedule is said to be serializable अगर हम देखते, अगर हम जानते कि इस शेड्यूल को हम इस तरह बना सकते हैं and they will give me the same result. इस concurrent schedule को भी हम इस तरह बना सकते, so then I'll say that this schedule is serializable schedule. Okay. तो तब हमको देखना पड़ता है कि अगर concurrent schedule दो ठो चल रहा है and if they are serializable, इसका मतलब they will preserve the consistency of the database. अगर serializable नहीं हुआ, they will not preserve the consistency of the database, क्योंकि serial schedule जो है वो consistent है, ये तो हम जानते हैं। तो concurrent schedule को अगर हम serial schedule में convert कर दे सकते हैं, theoretically चलते समय वो concurrent ही चल रहा है, लेकिन एक algorithm होगा जो कि ये चेक कर लेगा कि अच्छा ठीक है, ये अगर ऐसे चलता है तो it is equivalent to the serial schedule, so it is serializable. So then it will preserve the consistency, otherwise it will not. हो सकता है कि शेड्यूल को हटा देगा। So दो तरह से हम चेक करते हैं, one is called conflict serializability, another one is called view serializability. View serializability माने जिसको देख के ही हमको पता लग जाए कि अरे इसको तो ऐसा बना दे, जैसे हम ये प्रीवियस शेड्यूल लिखे थे, इस तो हमको देख ही के लग रहा है कि हाँ भाई, इसको अगर इसको नीचे ले, इसको ऊपर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज जस्ट सीरियलाइजेबल, ये ठीक है, वैसा ही रिजल्ट देगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है. So view serializability is otherwise very simple. देख के ही हमको लग रहा है. Though we will discuss about it. Conflict serializability is very, very important. People ask you questions about conflict serializability. तो serializable या serializability कहने का मतलब क्या है कि ये concurrent schedule can be made equal to a serial schedule. ऐसा हो सकता है क्या? तो कैसे टेस्ट करें? ऐसे ही देख के तो हो गया अलग बात, लेकिन जब शेड्यूल्स हैं तो हाउ विल वी चेक कि वेदर इट इज सीरियलाइजेबल और नॉट. ये तो बड़ा आसान से लिखा हुआ था. सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दैट. ओके, सो अभी फिलहाल के लिए आई टोल्ड यू वी इग्नोर ऑपरेशंस अदर देन रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन. We assume that transactions may perform arbitrary computation on data in local buffer, जो हम लोग अभी मानते ही आ रहे हैं कि a equal to a plus 50 जो हो रहा है local buffer में हो रहा है in between reads and writes. Our simplified schedules consists only of read and write instructions. ये हम लोग कल से देखते आ रहे हैं. We know this, that this is what is going to happen. ठीक है. Now conflict, give the heading, ये लिख लेना होगा. I want you to write this. Give the heading serializability. Give the heading serializability, and within that you write conflict serializability. Conflict serializability. Okay. Now, इसको forget about this one. Forget about this slide. I will send you this, but I am giving you a notation from the book of Korth. ठीक है, ये भी this is the same thing, ये gist में लिखा हुआ है. बस write down. Let us consider a schedule S. Let us consider a schedule S in which there are two consecutive instructions. There are two consecutive instructions, II and IJ, of transactions TI and TJ respectively. ब्रैकेट में लिख लो I is not equal to J. I is not equal to J. पहले इसका मतलब समझ लो. एक शेड्यूल है S, उसके अंदर जो है दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2. उसमें इंस्ट्रक्शन सब जा रहा है. ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज II इंस्ट्रक्शन ऑफ TI, एंड यहां कुछ और इंस्ट्रक्शंस जा रहा है जो भी जैसे भी. दिस इज IJ इंस्ट्रक्शन IJ ऑफ TJ. दिस इज TJ का एक इंस्ट्रक्शन है J. तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस नंबर है 4. 1 2 3 4 5 6, इसका 6 है. तो डेफिनेटली I is not equal to J. That is what is the meaning. Okay. Let us consider a schedule S in which there are two consecutive instructions II and IJ of transactions TI and TJ respectively. I is not equal to J. Full stop. Then you write, if II and IJ refer to different data items,
refer to different data items. Then we can swap II and ij. Then we can swap II and ij without affecting the results of any instruction in the schedule. Any instruction in the schedule. Okay? Before you write, understand this. Ti है, Tj है. यहां ये बोल रहा था रीड ए. कुछ कैलकुलेशन किया, बोल रहा है राइट ए. यहां ये बोल रहा है रीड बी. कुछ कैलकुलेशन किया, फिर बोलता है राइट बी. तो भाई टी आई इसका एक इंस्ट्रक्शन है आई, इसका एक इंस्ट्रक्शन है आई जे. डेफिनेटली आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट डेटा आइटम्स. ये ए को कर रहा है, ये बी को कर रहा है. तो हम इसको अगर आगे लिख दें टी आई और टीजे में, यहां अगर हम रीड बी लिख दें और यहां पे कुछ लिखें राइट बी लिख दें और यहां पे ले आए रीड ए को राइट ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बिकॉज कोई परेशानी नहीं होगी. वाई? बिकॉज दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट डेटा आइटम्स. तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंसिस्टेंसी, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव रिटन. देन वी कैन स्वैप देम. वी कैन स्वैप आई एंड आई. रीड ए था तो यहां रीड ए को यहां लिख दें और इस रीड ए को इसके जगह पे लिख दें. तो कोई इस रीड ए को आगे लिख दिए ए रीड बी को और रीड ए को इसके जगह पे लिख दिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी. दैट इज व्हाट इट इज रिटन. Okay, there will be no conflict. Then you write, however, if I and ij, if I and ij refer to the same data item capital Q, same data item capital Q, then the order of two steps, then the order of the two steps may matter. Full stop. Since we are dealing with only read and write instructions, there are four cases that we need to consider. Number one, I equal to
read Q, Ij equal to read Q. ओके, आई टोल्ड यू क्या है, इंस्ट्रक्शन है टीआई का, आईजे क्या है, टीजे का कोई इंस्ट्रक्शन है, तो दोनों में रीड क्यू है। ओके, तो दोनों में अगर रीड क्यू है तो जस्ट राइट डाउन, उसी में कंटिन्यू करो। द ऑर्डर ऑफ आई आई एंड आई जे, द ऑर्डर ऑफ आई आई एंड आई जे does not matter, does not matter since the same value of Q, capital Q, since the same value of capital Q is read by Ti and Tj, Ti and Tj regardless of the order, regardless of the order। कहने का मतलब दो ही इंस्ट्रक्शन है भाई, टीआई में है और टीजे में है। इसमें यहां पे लिखा हुआ है रीड ए, इसमें यहां पे लिखा हुआ है रीड ए, और कोई मतलब नहीं है दोनों में। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टीआई और टीजे में इसको रीड ए यहां पढ़ा दे और इसको रीड ए यहां बता दें? दोनों तो एक का वैल्यू ही पढ़ रहा, तो क्या आता जाता है कब पढ़े, ये पहले पढ़े या ये बाद में पढ़े, क्योंकि सिर्फ रीड ही है यहाँ पे। तो इनका ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। दैट इज व्हाट इज रिटन इन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, if I equal to read Q, Ij equal to write Q, full stop। If I comes before Ij, if I comes before Ij, then Ti does not read, then Ti does not read the value of capital Q that is written by Tj, that is written by Tj in instruction Ij, in instruction Ij। If Ij comes before I1, I'm sorry, not I1. If Ij comes before II, then Ti reads the value, then Ti reads the value of Q, capital Q, that is written by Tj, that is written by Tj. Thus, the order of II and Ij matters. Order of II and Ij matters. Let us see this. क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2? बोल रहा है कि भाई Ti है, यहाँ पे Tj है, तो इट सेज कि II इक्वल टू रीड Q।
हम मान लेते हैं कि I is less than J है, I is less than J, तो I is read Q. ओके, I is less than J यानी यहां मान लो कुछ और स्टेटमेंट है, दिस इज 3 नंबर का स्टेटमेंट. ओके, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, यहां पे कहीं पे आ रहा है राइट क्यू. उस हिसाब से हम बोले थे ये छठा नंबर स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली I इज लेस देन J. तो अगर ऐसा लेते हैं तो ये रीड क्यू है और यहां पे राइट क्यू है. तो बोला जा रहा है इफ I और IJ, इस केस में I is coming before IJ, then Ti does not read the value of Q that is written by TJ in instruction IJ. तो ये Ti जो है ये कौन सा वैल्यू रीड कर रहा है, जो पहले से Q का वैल्यू था होगा उसको इससे मतलब नहीं ना है. ये जो TJ जो राइट Q लिख रहा है उस Q को तो ये नहीं पढ़ रहा है. Ti Q का जो भी वैल्यू ये बाद में लिख रहा है, छठा नंबर स्टेट में लिख रहा है, लेकिन ये तीसरा नंबर में रीड Q पढ़ रहा है, तो वो वही वैल्यू आप Q पढ़ रहा है जो पहले से Q में हो. इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि राइट क्यू में Q का कौन सा वैल्यू TJ लिख रहा है. ओके, बट इफ अगर ऐसा होता कि I इज ग्रेटर देन J और यहां पे राइट क्यू है और यहां पे रीड क्यू है, तो ये कौन सा वैल्यू Ti, ये Q जो है कौन सा वैल्यू पढ़ता, द वैल्यू विच इज रिटन बाय TJ. ये जो वैल्यू लिख रहा है उस वैल्यू को ये पढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या था, वो वही वैल्यू पढ़ रहा है क्यू का जो पहले से है, उसको इस राइट क्यू से कोई मतलब नहीं है इसको. लेकिन इस केस में चूंकि वही वैल्यू को पढ़ा जा रहा है बाय Ti विच इज रिटन बाय TJ, thus the order of I and IJ matters. ये मैटर करता है कि कौन पहले लिख रहा है कौन बाद में पढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो I और IJ का जो है ये मैटर्स, द ऑर्डर मैटर्स. दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन भी और करेंगे हम लोग. पॉइंट नंबर 3, I is equal to right Q. I is equal to right Q and IJ is equal to read Q. ओके, एक ही चीज हो गया पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3. ठीक है, यहां भी लिख लो द ऑर्डर ऑफ I, the order of I and IJ matters for reasons similar to those of the previous case. Point number 4, the last point. I is equal to right Q, IJ is equal to right Q. एक चीज तुम गौर कर रहे होगे, हम दोनों में डेटा आइटम Q ले रहे हैं. ये अगर राइट A है तो ये भी राइट A का बात कर रही है. अगर राइट B होता तो कोई मतलब ही नहीं है. ये अगर दोनों अलग अलग डेटा आइटम है तब तो कोई मतलब, बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है. लेकिन दोनों A है या दोनों B है तब ये सब परेशानी है. ओके, सो देन since both instructions, continue writing, since both instructions are right operations, both instructions are right operations, the order of these instructions
the order of these instructions does not affect either TI or TJ. Either TI or TJ. यहां पे है राइट क्यू, यहां पे भी है राइट क्यू, तो क्या आता जाता, आगे पीछे कर दे सकते हैं। लेकिन अभी तो राइट राइट कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां अगर रीड क्यू होता ना, तब मैटर कर जाएगा कि कौन सा राइट का वैल्यू वो रीड पढ़ रहा है। एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ देम आर राइट क्यू, तो ठीक है, डेटाबेस में जो भी वैल्यू लिख रहा है फाइनल वैल्यू वही लिख रहा है, इमटेरियल। ठीक है, सो इसीलिए कंटिन्यू राइटिंग। However, the value obtained by the next read queue instruction of capital S क्या था, schedule, instruction of capital S is affected, comma, since the result of only the latter of the two right instructions is preserved in the database, full stop. If there is no other right queue instruction after II and IJ in S, then the order of II and IJ directly affects the final value of Q in the database state that results from schedule S, ओके। कहने का मतलब था कि ये टीआई फिर ये टीजे है, ये दोनों में राइट है, तो सेम डेटा आइटम पे, तो ठीक है, डेटाबेस में वही प्रिजर्व्ड होगा जो लास्ट में लिखा है। लेकिन अगर इनके बाद कहीं रीड आता है तो ये मैटर करता है कि भाई ये कौन सा क्यू को पढ़ रहा है, बिकॉज ये क्यू को अगर पढ़वाना था और यहां पे अगर राइट क्यू आ गया तो दिस ऑर्डर डेफिनेटली मैटर्स, कि ये यहां रीड क्यू था तो इसको यहीं होना चाहिए, ये इसके बाद यहां नहीं आएगा, कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा तब भी।
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, लेट मी, प्रोबेबली यू आर कंफ्यूज्ड इन अ वे। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि हमारे पास तो TI-TJ शेड्यूल है ना, वो इस तरह से शेड्यूल है, कंकरेंट शेड्यूल है। हमको देखना है कि सीरियलाइजेबल है कि नहीं, एंड दैट टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हम देख, माने हम अब क्या करेंगे ना, इसको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे यूजिंग सर्टेन रूल्स। माने TI और TJ के अंदर का इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करके हम इस तरह बनाना चाह रहे हैं, हम इस तरह बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये शेड्यूल, ये एडजस्टमेंट करके ऐसा बन सकता है, सो देन वी विल से कि दिस इज सीरियलाइजेबल। तो तुम बोलोगे यार इसमें करने का क्या है सर, इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ है इसको उठा के यहाँ बैठा दीजिए और इसको नीचे ले आइए तो हो गया सीरियलाइजेबल। नो नो, नॉट दैट, इट इज अ रनिंग प्रोग्राम, राइट। रनिंग प्रोग्राम में हम देखना चाहते सीरियलाइजेबल है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। कैन वी इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, ऐसा इसीलिए ये सब पढ़ रहे हैं। ये राइट क्यू है, यहाँ राइट क्यू है, उसके बाद ये रीड क्यू है, तो इसको इधर उधर हम करने से दिक्कत हो जाएगा। आई कैन नॉट डू दैट। सो दैट इज व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों में रीड था तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, एक में रीड था एक में राइट है, कॉन्फ्लिक्ट है। एक में राइट है दूसरा में रीड है, कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों में राइट राइट था तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन अगर उसके बाद कोई रीड आ रहा है ऑन द सेम डेटा आइटम, तब तो ऑर्डर मैटर कर जाएगा कि इसका लिखा हुआ क्यू को ये पढ़ रहा है कि यहां पे जो क्यू लिखा हुआ है उसको ये पढ़ रहा है। सो दैट ऑर्डर मैटर्स, दैट इज व्हाट यू हैव रिटन। These are the 4 very 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 important points. Just write down a note. A note. We say that I and IJ conflict, जो हम अभी अभी बताएं, conflict if they are operations, by different transactions on the same data item, and at least one of these instructions is a write operation. Is a write operation. ठीक है, कहने का मतलब, if you watch this, just watch this one. ये इस शेड्यूल को अगर देखो तो you can see, ये शेड्यूल 3 है, you can see there write a instruction of T1, ये conflicts with read a instruction of T2. कॉन्फ्लिक्ट यहां क्या, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि इनका ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ऑर्डर हम, आई कैनॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज, आई कैनॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज। क्यों? ओह, जस्ट अ सेकंड, इसलिए आई कैनॉट चेंज द ऑर्डर बिकॉज ये राइट ए जो वैल्यू लिख रहा है, इट इज राइटिंग द वैल्यू 950 और ये ए को वही 950 पढ़ना है। अगर हम रीड ए को पहले कर दें और राइट ए को बाद में कर दें
ठीक है, ये सीरियलाइजेबल बनाने के चक्कर में, तो देन रीड ए 1000 पढ़ लेगा। अंडरस्टैंड दिस? यहां राइट ए है, राइट ए, और उसके बाद यहां पे रीड ए है, यानी ये कौन वही ए का वैल्यू पढ़ रहा है जो इसने लिखा है। सो जब भी हम ये दोनों को इंटरचेंज करने का कोशिश करेंगे, ये विल से कि काहे कीजिएगा, इसीलिए इंटरचेंज करने का कोशिश करेंगे कि हम देख रहे हैं कि दोनों शेड्यूल को चेंज करके इस तरह का शेड्यूल बनाया जा सकता है कि नहीं। देन ओनली विल से कि दिस शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। बार बार एक ही लाइन हम बोल, तो इसीलिए इनको चेंज करके देखना चाहते हैं कि ऐसा बनेगा, बन सकता है क्या। तो हम देख रहे हैं अगर ऐसा होगा तो हम दोनों का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी यहां रीड ए और यहां राइट ए नहीं लिख सकते हैं। तब ये रीड ए पुराना वैल्यू ऑफ ए पढ़ लेगा, ठीक है, लेकिन यहां उसको कौन सा वैल्यू पढ़ना था, इसमें जो वैल्यू ये राइट ए लिखा है यहां पे, उस वैल्यू को यहां उसको पढ़ना था। सो यहां पे दैट मीन्स वी से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि आई कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। सो दैट अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वी डेफिनेटली कैन चेंज द ऑर्डर, और ऑर्डर को चेंज कर करके हम देख सकते हैं कि वेदर इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल और नॉट। सो दैट इज व्हाट इज आवर ट्राई। तो इस पूरे शेड्यूल को, शेड्यूल 3 को, यहां पे देखो आई टोल्ड यू कि हमारे लिए रीड और राइट इंपॉर्टेंट है, रीड और राइट, रीड और राइट और रीड एंड राइट। तो इस पूरे शेड्यूल को कैन आई नॉट राइट लाइक दिस, इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, हमारा एक शेड्यूल है एस, इसमें T1 है, इसमें T2 है, यहां पे लिखा हुआ था रीड ए, राइट ए, यहां पे लिखा हुआ था रीड ए, राइट ए, फिर यहां पे लिखा हुआ है रीड बी, राइट बी, यहां पे लिखा हुआ है रीड बी, राइट बी। बाकी बीच का वो ए प्लस टेम्प और माइनस टेम्प और वो सब हटा दिए। तो हमारे पास बचा यही शेड्यूल, हमको रीड और राइट में ही कॉन्फ्लिक्ट देखना है, तो मेरे पास ये बचा हुआ। इधर T1 आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, हाँ, इसको डोंट इमेजिन कि भाई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नो नो नो। तो यहां राइट ए एंड रीड ए जो है, यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो है, तो ये दोनों का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। देखो कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी, अलाउ मी 3 मिनट्स बिफोर आई फिनिश दिस क्लास। तो रीड ए है, राइट ए, लेकिन राइट ए और रीड ए इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हम देख चुके कि कोई भी अगर एक राइट है सेम डेटा आइटम पे तो कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्डर मैटर्स। अच्छा, तो यहां पे ये है राइट ए और रीड बी, ये दोनों का तो ऑर्डर से कोनो मतलब नहीं है। ये दूसरा ए को पढ़ रहा है, लिख रहा है, और ये बी को पढ़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इनका ऑर्डर को ऐसा है कि हम चेंज कर देते हैं। तो इनका ऑर्डर को चेंज करेंगे तो आई कैन राइट इट दिस वे, वॉच दिस। इसका ऑर्डर को चेंज करके हम ऐसा कर देते हैं, यहां पे ले गए उठा के रीड बी, और यहां पे लिख दिए, यहां पे लिख दिए राइट ए। लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है किसी को, कहे कि ये तो वो ए और बी में कोई परेशानी नहीं था, तो आई कैन दोनों को ऑर्डर को हम चेंज कर दिया, आगे पीछे कर, आई कैन डू दैट। अब यहां देख रहे हैं, यहां राइट ए है और यहां राइट बी है, यहां, तो इन दोनों का ऑर्डर से हमको कोई मतलब, लेकिन यहां इसका ऑर्डर में प्रॉब्लम है। ये रीड बी को इस राइट बी के बाद आना है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो यहां हम आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे ये राइट ए और राइट बी है, तो हम इनका ऑर्डर में कोई मतलब नहीं है, ये अलग डेटा आइटम है, तो कोई कुछ आता जाता नहीं है, तो आई कैन चेंज देयर ऑर्डर। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज इट दिस वे, आई कैन डू दिस वे,
हम इसको उठा के यहां ले गए, राइट बी, और यहां पे ले आए राइट ए। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, दोनों को शिफ्ट कर दी। तब हमको दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया, तो रीड ए और रीड बी दोनों में ऐसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा करें कि इसको और इसको शिफ्ट कर दें। तो इसको शिफ्ट करें तो यहां चला गया रीड बी और यहां आ गया रीड ए, शिफ्ट कर दी। अब यहां रीड ए और राइट बी, इसके बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो दिस ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। सो व्हाट आई डू इज, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले गए। तो यानी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए हम चेंज करते गए कि नहीं नहीं, ये रीड भी उधर ऊपर नहीं चल गया, ये इधर नहीं आ गया, उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, जहां था कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखते हुए हम स्वैप करते गए। तो एट द एंड वी गेट अ रिजल्ट लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट आवर शेड्यूल 1 which was a typical serial schedule। सो तब ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल 3, जहां पे इस तरह लिखा हुआ है T1 एंड T2, रीड राइट रीड राइट रीड राइट रीड राइट, तो हम देखे कि कॉन्फ्लिक्ट को हम हटा के आई कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस काइंड ऑफ अ शेड्यूल। सो दैट इज व्हाई दिस शेड्यूल इज कॉल्ड अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल को सीरियलाइजेबल बोले? शेड्यूल 3 को। कंकरेंट शेड्यूल है, लेकिन इसको अगर हम चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट हटा के सीरियलाइजेबल सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल अगर है तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस को प्रिजर्व करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन अलाउ दिस टाइप ऑफ शेड्यूल टू रन। So this is what is your serializability and conflict serializability. I told you this was very important to understand this. It was really, really important to understand this. Just go through it once and let me know if you have any problems. तो ऐसा करते हैं कि let us end this class here. Let us end this class here. हम लोग उसको यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, एंड कल का भी छोड़ ही देते हैं। नहीं, कल एक दिन, अच्छा तुम लोग कल वी हैड अ डिस्कशन, नहीं एक नोटिस आया था हमारे फैकल्टी ग्रुप में कि योर एग्जाम्स विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हो ना हो प्रिपेयर्ड रहो, और हो सकता है कि ये बोल दिया जाए कि एक मिड सेम भी तुम लोग का लेना होगा फॉर योर बेनिफिट ओनली, सो दैट कुछ मिड सेम से अगर बेहतरीन मार्क्स मिल जाता है, 25 में अगर कुछ 20-22 तक मिल जाता है, तो रेस्ट 45 मार्क्स लाने में आसानी होगा, रादर देन गिविंग ए 75 मार्क्स एग्जाम। तो इसके लिए भी तैयार रहोगे, बिकॉज हम ये नहीं, जुलाई का फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम होगा तो हम अचानक से बोल देंगे कि हम 2-4 दिन के अंदर में टेस्ट लेंगे मिड सेम का। ठीक है, ऑनलाइन ही लेंगे, गूगल मीट पे लेंगे, कैसे भी लेंगे, बट वी मे टेक ए टेस्ट। और खाली हमें नहीं, हर टीचर लेंगे, मैंने तब आई थिंक मैम भी लेगी, मन लेना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कल का क्लास नहीं रखते, पढ़ो इसको थोड़ा, सीरियलाइजेबिलिटी को पढ़ो, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हम ये स्लाइड को उसमें चढ़ा देंगे, बट स्टिल यू रेफर टू द बुक बाय कॉर्थ, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, एनी डिफिकल्टीज टिल नाउ, एनीबडी? इज इट ऑल राइट? फॉलो कर रहे हो क्लासेस? एनीवन? यस सर। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट आई होप यू आर फॉलोइंग इट। इफ नॉट, आई विल हैव वन डाउट क्लियरिंग क्लास समडे। तो कल लेट्स हैव अ हॉलीडे, इज इट ओके फॉर यू? यस सर।
चलो ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सर। Thank you, sir.